ఇది ఫస్ట్ ఎవర్ ఈకో ఫ్రెండ్లీ క్రిమేషన్ గ్రౌండ్ ఉంది. దాంట్లో ట్రెడిషనలీ మన వైదిక్ కల్చర్ ప్రకారం బర్నింగ్ ఆఫ్ బాడీ ఉప్పలతో ఆర్ కౌడాంగ్తోనే చేయాలా. బట్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వాళ్ళు కట్టతో చేశారు. బట్ ఒక్క బాడీకి ప్రాక్టికలీ 10 years ట్రీ అవసరం ఉంటుంది బర్న్ చేయడానికి. సో దానికి బ్రేక్ చేయాలని ఆ పాత వైదిక్ కల్చర్ని మళ్ళీ తీసుకురావాలని అందుకే వీ స్టార్టెడ్ బర్నింగ్ ఇట్ విత్ గోకాస్ట్ విచ్ ఇస్ అవుట్ ఆఫ్ కౌడాంగ్. అండ్ దానికి స్టిక్ చేసి దాంతో బర్న్ చేస్తున్నాం. అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఆర్గానికలీ ఆర్ పొల్యూషన్ కాకుండా, దాంట్లో పొల్యూషన్ ఉండదు బికాజ్ ఇట్ బర్న్స్ టిల్ ద లాస్ట్. దట్ హస్ బీన్ అవర్ స్పెషాలిటీ. ఎలక్ట్రికల్ ఆల్సో ఎలక్ట్రికల్ కాకుండా గ్యాసిఫైర్ అండ్ ఎల్పిజి ఫర్నసెస్ కూడా ఉంది. బట్ ఎప్పటి నుంచి మేము కౌడంగ్లో క్రిమేషన్ స్టార్ట్ చేసింది, పబ్లిక్ కూడా వాళ్ళు వాలంటరీగా ఇన్సిస్ట్ చేస్తారు మేము మాన్యువల్లోనే చేయాలని. బికాజ్ ఈ గౌరీ గారు ఇది టేక్ ఓవర్ చేసిన ముందు ఇక్కడ ఒక డర్టీ వాటర్ లేకుండే, ఇట్ వాజ్ వెరీ డర్టీ. దానికి ఈ షేప్లో తీసుకురావడం, అందరు కలిసి ట్రస్టీస్ డొనేట్ చేసిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ 2 crores స్పెండ్ చేశారు దీనికి ఈ షేప్లో తీసుకురావడానికి. అండ్ లాస్ట్ 9 years నుంచి I as a general secretary and the whole group, అన్ని members కలిసి we take good care of this place. Swarg Vatika, ఆ పేరే ఫస్ట్, అండ్ ద నేమ్ ఆల్సో వాజ్ చోజన్ బికాస్ మేము మొత్తం లైఫ్ we live our life, and then when our near and dear pass away, with my experience I say, when my mother passed away, wherever we had done our cremation, the routine is the moment kapal happens, everybody just walks out because it is not very neat and clean. It's not a good place to stay. But say when I lost my mother, all my life she brought me up, took great care of me. But at the last time, you don't spend even a minute extra to see her off. But here we made it a point, like you rightly said, it's a beautiful garden. We take special care in keeping it neat and clean. And we have a great team which takes care of it. Our purpose is that whenever you come to see off your near and dear, your parents, your friends, your family, at least you should sit down and remember those nice life which you have spent with them. So that was the reason why we take such good care. And the garden has been growing so beautifully. And like Shiva says, that vibhuti, the left out vibhuti, is so pure and so energetic. We use the same vibhuti for the plants also. It works as a pesticide and also as a manure. So that has been, yeah. The good thing was, I mean, I shouldn't say good thing, but we were, Harish Rauji, when his mother passed away and another sister passed away and also their uncle, they chose Swarg Vatika to come and do the cremation here. And once they came here the first time, they found it so pristine and so nice, so well maintained, that they were so impressed the way, particularly with the Gokast, what we were trying to do, bringing in those Vedic culture back, that Mr. KTR personally suggested that he would want to take it forward, and it becomes his father, our Honorable Chief Minister's desire that in his constituency, they wanted to replicate this PPP arrangement for those cremation grounds also. And they were willing to take our help, and we are also more than happy. If they seek our help, we will be ready to help them out. The good thing is, we have been, it's a non-profit organization. The purpose is not to earn profits. So we, including all the material what we use and the staff available, the cremation charges are just 4,000 rupees. Plus the transportation, the bus, whatever required, that is extra. But we also have a package in which whenever the local political heads
say cantonment or the local MLA, when they recommend that there is a very poor family who is a white card holder, then we charge only 1,000 rupees from them. देखिए ऐसा है, इस जगह को हमेशा एकदम नेगेटिव माना जाया करता था कि यहाँ पे कोई एक्सेप्ट के जब क्रिमेशन होता है कोई आना नहीं चाहता था, पर हम बड़ी खुशी से कहते हैं कि आप शाम को देखेंगे कि लोग वॉकिंग के लिए आते हैं यहाँ, और जब भी कोई फैमिली क्रिमेशन के लिए आता है वो आधा घंटा नहीं तो 1 घंटा बिताना चाहता है कि बैठ के जो भी उनके नियर एंड डियर जिनका क्रिमेशन कर रहे हैं उसका पूरा फायर देख के घर जाते हैं। तो इस सिचुएशन में एप्रिसिएशन तो हम क्या कहेंगे, बट हाँ लोग खुश होते हैं कि बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, इट इज़ मेंटेन वेरी वेल and people are pretty cordial and they take good care. So that is the biggest satisfaction for us. इसमें कोई वो business का है नहीं ऐसे, तो it is not important that बस लोगों की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है और हम कोशिश यही करते हैं। इसमें appreciation कोई करता है तो हम खुश हो जाते हैं। देखिए, the collector is ex officio chairman of the trust, plus there is a deputy for him. लेकिन क्योंकि ये क्रिमेशन ग्राउंड है तो वी आर वेरी हैप्पी टू से कि उन्होंने आज तक कभी हमको एक्सेप्ट सेटिंग अप रूल्स के, अभी जैसे कोविड टाइम में अगर जे आपको कोविड पेशेंट्स को करना है या नहीं करना है और टाइमिंग का है कभी कभी, उसके अलावा कभी उन्होंने इंटरफियर नहीं किया, क्योंकि हमने भी कभी किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। तो इस कारण से वी आर थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑल्सो दैट दे हैव गिवन अस द स्पेस टू रन इट एंड दे डोंट इंटरफियर एंड डोंट डिस्टर्ब अस मच, which is a blessing in disguise. That यहाँ पे हम we try and do the best to our जो लोग आते हैं क्रिमेशन के लिए, हम उनकी सेवा पूरी तरह करते हैं। इसमें भी we have been blessed कि we have a retired captain who's Captain Maite, who's been our manager here, and he takes great care. He's brought the discipline of army in the team here. वो आर्मी में कहते हैं ना कि आपको अपने स्टाफ को हमेशा प्रोडक्टिवली बिजी रखना चाहिए, वो इस बात को बहुत अच्छे से करते हैं। सबको मोटिवेट करके, सबको एज अ टीम बना के हर एक का अपना ड्यूटी जो है वो परफॉर्म करते हैं, और रोज़ एज ए सेक्रेटरी वो हमको रिपोर्ट करते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है। तो हम सिर्फ हफ्ते में 1 या 2 बार जब भी काम होता है हम आते हैं, रेस्ट ऑफ द टाइम ही टेक्स केयर ऑफ द कंप्लीट प्लेस। आई थिंक गौरी साहब के अलावा कोई और ये कर नहीं सकता था, बिकॉज ऑफ हिज वेरी डिटरमाइंड एफर्ट and his dedication towards service made it possible कि एक बिल्कुल जो तालाब की तरह ही डर्टी वाटर लेक था, वहाँ से आज जो आप देख रहे हैं ये उनकी मेहनत और डेडिकेशन है। उन्होंने पर्सनली जितने हमारे ट्रस्टीज़ हैं उनको सबको साथ में ला के he made them contribute money towards the building up of this project. And I can tell you this, he all through, he has been, it's a baby conceived by him, built by him, maintained by him. Just that we bless that his health is good, he will remain happily healthy. Unfortunately, बीच में he had become a little थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी. That is when he handed over the responsibility to us. And I can only say this, if he acknowledges even today कि हाँ हम अपनी तरफ से उनके expectations के हिसाब से कर रहे हैं, तो उससे बड़ी खुशी हमें कुछ नहीं हो सकती. क्योंकि I had the fortune of working with him as secretary also as a chairman and president. तो मुझे पता है कि what good taskmaster he is, कि एक बार एक responsibility दे दी तो जब तक वो ख़त्म नहीं होता वो रुकते नहीं हैं. तो that kind of a person, it was a blessing for us कि हमने उनके अंडर काम किया. अपनी ज़िंदगी में भी, इस स्वर्ग वाटिका के अलावा भी अपनी ज़िंदगी में भी हमने उनके जो ट्रेनिंग है उसका फ़ायदा उठाया. देखिए, ये बात सच है
कि जब गौरी साहब ने दोस्तों को साथ में लिया तो सबको एक भरोसा था कि हाँ, पर्टिकुलरली उनके गाइडेंस में कि ये अच्छा बनेगा, और हुआ भी वही। सब ने अपना जो डोनेशन किया, उस डोनेशन का इतना अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन एक गिफ्ट है, गॉड्स गिफ्ट, एंड हिज जो उनका विजन था दैट केम टू रियलिटी। तो बिकॉज ऑफ हिज पर्टिकुलर कमिटमेंट लोगों ने सबने कंट्रीब्यूट किया, और आज हमें खुशी होती है कह के जब भी कोई छोटा या बड़ा, मैं ये नहीं कहता कि अमीर या गरीब, कोई भी आता है वो बड़े खुशी से अपने डियर को क्रिमेट करके वो खुशी मतलब एटलीस्ट उसको गंदगी या दुख नहीं होता है कि हाँ ऐसी जगह हमने किया है। क्योंकि मुझे याद है जब मेरी माता जी का हुआ था तो जहाँ पे क्रिमेशन हुआ था मैं बैठना चाहता था, बट लोगों ने बैठने नहीं दिया, बोले चलो 10 मिनट में हमें वहाँ से उठा दिया गया। बट यहाँ पे जब हम देखते हैं कि लोग आके बैठ जाते हैं बहुत सारे टाइम, तो दिल को अच्छा लगता है कि हाँ, हमारी सेवा जो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं उसका फ़ायदा हुआ है। दिस इज़ 3.5 acres which was given to us. People thought that besides the lake, there may not be too much of land. But I can tell you this, again, thanks to D.N. Gauri ji, that we even took help from army, the local army units. They had given us the bulldozers and their staff, and they did it for days or months together just to level it. Aj, I think this is the only cremation where you can park about 50 cars and about 100 scooters. There is no other place where you can have this much of a parking space. On this road, though you avoid the road also, there's a proper parking place. Trees, there are every kind of trees here. We have no count. We still continue to plant. Our recent addition was, thanks to Captain Mahathir also, we have started to plant fruit trees so that our staff can enjoy those fruits while they are working hard. We have a kitchen garden in which all kind of vegetables are grown, so that every day in the evening they pluck some vegetables and go back home, which is a beautiful example that it's purely organic. We don't put any chemicals besides the ash what we use as a pesticide and a fertilizer, and it is working magic. You can see every plant here is smilingly green. It's beautifully green. We have to do a lot of cutting because they overgrow very much. That's one great thing. देखिए, main trustees हैं, they have donated 3.5 lakhs. Plus there are smaller donors also. Plus जो golden trustees हैं, जो major trustees हैं, they have also donated 20 lakhs also. We have a beautiful mix, and about 2 to 2.5 crores was raised because we, right from the day one, expenditure had started. But there were beautiful things, like you can see there were a lot of rocks here spread all over. We collected those rocks and placed them in such beautiful way that we have a rock garden created. So nothing was wasted. If you can carefully watch, even जो cremation के लिए अर्थी के लिए bamboos आते हैं, वो बैम्बू को भी वेस्ट नहीं करते, हम उसी बैम्बू से वी क्रिएट द गार्डन फेंस. आप देखेंगे, यू मस्ट हैव सीन. सो दोज फेंसेस आर आल्सो मेड आउट ऑफ दैट बैम्बू. सो nothing gets wasted here, and thanks to the new team now, every staff here is so dedicated. They feel so involved and happy that I think it's the God's blessings and Gauri's blessings. देखिए, at an average about 100 cremations per month होता है, एवरेज. आई मीन कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, तो हम करेक्ट फिगर तो नहीं दे सकते. बट आप अगर जे एक महीने का 100 cremations को भी ले लें, if we have to become eco-friendly, each cremation earlier used to take 2 10-year-old trees. So you can imagine every month we would consume 300 trees or 200 trees. And now, from when we have started using gobar, which is a very Vedic, and people coming here are very happy that they are doing it with it. That is a waste. Gobar, people used to spend money ke bhai tum utha ke le jao. Now that same gobar, we have a machine fixed in one of the gaushala, very big gaushala.
You would not believe. The wood was bought at 5 rupees a kg, but we are buying go-cast at 10 rupees a kg with only one purpose, that we are able to pay back to that gaushala, that out of waste they are making wealth out of it. They are giving us a eco-friendly stick to burn, which is very non-pollutant and very Vedic in nature. The whole purpose of Veda was this, that you don't pollute the world, and out of the waste it was. That's why it was made traditional, and we follow that. So approximately we are saving 200 trees every month. Now, I think that's a big saving. So when we pay a little extra to the Gaushala people, that is helping them to feed their own cows, what they are. So our bill is more than a lakh or and a half sometimes. So that money goes as a seed money for them. So it's a win-win situation. It is the people who come here are happier, and plus the cow dung which is getting used is very Vedic and very cultural, so people feel very proud about it. देखिए, हम तो एक सेवक हैं. We are trying to do our best. I think Gauraji created us, our president, Surinder Palji, who's also a very socially active person. He gives us a free hand. अभी जो president है, वो भी right from the day one है. तो वो हमेशा यही कहते हैं कि हम जितना, मतलब हमको इसमें प्रॉफिट नहीं कमाना है. ये एक जगह मिली है, उसको वही पैसे से जितना अच्छे से हम मेंटेन करें, तो लोग जब आएँ तो उनको लगे कि हाँ, लास्ट टाइम में हम थोड़ा वक्त बिता सकते हैं अपने नियर एंड डियर के साथ. और जैसे आपने कहा कब्जा की बात है, आई थिंक इस जगह में कौन क्या कब्जा करेगा. जो है उनके पास वो भी छोड़ के जाते हैं यहाँ पे, तो लेके इट्स अ ब्यूटीफुल इंडिकेटर कि आपका कुछ नहीं है. आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जा रहे हैं. तो जब आप खाली हाथ जा रहे हैं, एटलीस्ट जो हैं वो कुछ सीखें कि देखो वो कितना भी अमीर था या गरीब था, वो आया खाली हाथ था और जा भी खाली हाथ रहा है. पर एटलीस्ट जब आप हैं, खुशी से रहें और थोड़ा सा वक्त अपने फैमिली के साथ खुशी का बिताएं. उससे और बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है. आई थिंक कब्जा तो बोलते ना, कोई परमानेंट कब्जा तो कोई भी नहीं करता, सब कुछ टेम्पररी है. तो बस हम अपना यही कोशिश कर रहे हैं कि इस जगह को इतना सुंदर बना के रखें कि लोग घबराएं ना यहाँ आने से, खुशी खुशी आएँ, अपना रिचुअल करके चले जाएं. नहीं, देखिए ऐसा है, स्वर्ग तो अपने कर्मों से मिलता है. आई थिंक हम लोगों के जो इसको अभी मेंटेन कर रहे हैं, या हमारे जो ट्रस्टीज़ हैं, हमारे प्रेसिडेंट सुरेंद्र पाल जी या चेयरमैन गौरी साहब, ये हम लोगों के कर्म अच्छे थे कि हमने ये इतना प्यारी जगह बनाई, और हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं कि वो जब अपना जर्नी कंप्लीट करके ज़िंदगी का जब जा रहे हैं भगवान के पास, तो वो स्वर्ग को जाएं. और इससे अच्छा एंड क्या हो सकता है, जब खुशी से लोग विदा कर रहे हैं अपने को, तो नेचुरली उनकी जर्नी भी खुशी खुशी होगी. सो दैट इज़ हाउ स्वर्ग वाटिका के, वैसे तो स्वर्ग और नर्क धरती ही है. तो अगर जी इस जगह को भी हम एक क्रिमेशन ग्राउंड को भी इतना प्यारा बना सकते हैं, तो लोग अपनी ज़िंदगी को भी अच्छा बना सकते हैं. दैट इज़ व्हाट आवर डिज़ायर इज़, आवर विशेस आर. ये तो हमारे गौरी जी और जो एकदम सीनियर्स जो उन्होंने डिसाइड किया था, ये उनकी सोच है और उन्होंने ही ये नाम चूज़ किया. और शायद वही कहते हैं ना, जब आपकी पहली सोच ही अच्छी हो तो नतीजा भी अच्छा होता है. तो शायद आज जो स्वर्ग वाटिका बना है यहाँ, वो उन्हीं अच्छी सोच का नतीजा है और अच्छे एफर्ट का नतीजा है. और हमारी यही ख्वाहिश है कि ये ऐसे ही चलता रहे. अभी के जो प्रेसिडेंट भी हैं और बाकी ट्रस्टीज़ भी हैं, वी हैव जो हमारे पहले ट्रेजरर थे और वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, हर ट्रस्टी का अपना एक रोल है, हर एक की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वो सारा एफर्ट डालते हैं तभी हम काम कर पाते हैं. अभी जैसे आपने देखा कि हॉल जो ओपन हॉल था, केटीआर सब जब आए थे, तो जब बॉडी को जलता है, थोड़ा सा स्मोक निकलता है, अगर जो हवा यहाँ से है तो वो सीधा उस हॉल में जाता था. तो सडनली प्रेसिडेंट साहब, चेयरमैन साहब, सब ने डिसाइड किया कि हम इसको कवर कर देते हैं. तो अभी हमने वो अभी कमीशन होना है, इनॉग्रेट होना है, तो अभी आपने देखा कि वो इतना सुंदर बन गया.
पहले बिल्कुल ऑर्डिनरी था, खुला था। अब उसको प्रॉपर्ली हमने उसको मेंटेनेंस फ्री टाइल्स करके बेंचेस का ऑर्डर कर दिया, तो सीट बन जाएंगी। तो हम अपनी तरफ से जो भी, मतलब इसका एक बजट एलोकेटेड था, उस एजीएम में जितना बजट था उससे भी कुछ लोगों ने डोनेशन दिया और कुछ लोगों ने डिस्काउंट किया कॉस्ट में, कि हमने ऑलमोस्ट 2/3 कॉस्ट में 1/3 बचा लिया उसमें से, और वो हमने बना दिया। तो हमारी कोशिश यही है कि जो भी आते भी हैं वो अपना सजेशन देते हैं कि ये चीज़ इम्प्रूव करो या और कोई चीज़ इम्प्रूव करो, उसको हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम हर एक के डिज़ायर के हिसाब से करें। और मुझे आई थिंक सबसे पहले तो गौरी साहब को, सुरेंद्र पाल जी हमारे प्रेसिडेंट, और हमारे मैनेजिंग कमेटी और सारे ट्रस्टीज़ को धन्यवाद करूँगा कि सब ने अपना ट्रस्ट, जिसको बोलते हैं ना, ट्रस्टीज़ ने अपना ट्रस्ट दिखाया है, और हम अपनी तरफ से जितना अच्छा हो सके हम करते हैं। चिन्नजीयर स्वामी जी, उनको बुलाया गया था, ही केम हियर पर्सनली, कलेक्टर और एमएलए और सारे जो यहाँ के इम्पोर्टेंट पीपल थे वो भी आए, चेयरमैन साहब भी थे और हमारे ट्रस्टीज़ भी थे। तो जब इनाग्रेशन हुआ तो चिन्नजीयर जी का भी एक दुआएं थी, उनकी गिफ्ट था कि इसको ऐसे ही मेंटेन कीजिए। हमने कोशिश किया, उससे और बेटर ही किया है हमने। तो हमें भी इस बात की खुशी है कि आज स्वर्ग वाटिका रियली, जैसे आप कह रहे हैं, खुशी से कह रहे हैं कि ये स्वर्ग वाटिका है, तो वाटिका तो है ही है। हम एडवाइस देने को तैयार हैं, बिकॉज़ अभी इतना एक्सपीरियंस हो गया है गौरी साहब को भी, हमारे सुरेंद्र पाल जी प्रेसिडेंट को भी, और हमारी टीम को, कि हम कभी भी एडवाइस कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली आपने देखा होगा, गोकास्ट के लिए, गोबर जलाने के लिए, ज़मीन पे रख के आप जलाओगे तो वो नहीं जलता है अच्छे से, उसको हवा लगनी होती है। तो हमने वो कास्टिंग खुद बनाया है, वो कास्टिंग वो बना के उसमें रख के क्या होता है कि लास्ट पीस तक गोबर पूरी तरह जल जाता है, तो बॉडी का ऐश भी बिल्कुल परफेक्टली हो जाता है। तो ये जो चेंजेस हैं, ये जो अडॉप्शन है, ये अगर जो दूसरे सेंटर्स, हमने कईयों को डोनेट भी किया है, लोगों ने ख़रीदा भी है, तो कई और क्रेमेशन ग्राउंड्स अडॉप्ट कर रहे हैं। बट वी आर विलिंग, वी आर रेडी टू सपोर्ट देम बाय इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब उनको कास्टिंग का वो दे सकते हैं। हमने मशीन भी ले आए हैं हम, जो कि गोकास्ट खुद बना सकें, ताकि अभी जैसे बादशों में स्टॉक नहीं मिलता है, तो हम खुद भी बनाने के लिए केपेबल हैं। तो धीरे धीरे अगर ये हर क्रिमेशन ग्राउंड में जाएगा, तो वहाँ पे भी यही होगा कि ठीक है, 200 ना सही, एटलीस्ट 100 पेड़ तो बचेंगे। हर महीने में एक 100 पेड़ बचना बहुत बड़ी बात है, और वो भी 10 साल बड़ा पेड़। तो अगर जी इसको अडॉप्ट किया जाए, इको फ्रेंडलीनेस, तो आई थिंक हर इंसान जो जीवित है वो खुशी से जिएगा, एटलीस्ट अच्छी सांस लेगा, और उसको ये भी पता होगा कि जब मैं जाऊंगा, इस सुंदर पेड़ को काट के नहीं यूज़ होगा, बट गोकास से होगा। अच्छी तरह से, मतलब पब्लिक जैसे कितना दुख में आते हैं, और जाते समय बोझ ना हो, और उसमें दिल में कोई ऐसे ना ले के जाएं कि इधर अच्छा नहीं है जगह। वो खुशी होना चाहिए सबको कि हाँ, इधर हम लोग ये काम कर रहे हैं बोल के। देखिए, मैं आर्मी में भी 28 साल सेवा किया, अब मेरे को भी इधर सेवा का मौका मिला। मैं चाहता हूँ ऐसे मौका मिले मुझे ज़िंदगी भर, जब तक जिंदे रहूँगा मैं, यही मौका मेरे को मिलते रहे सेवा, पब्लिक का सेवा करने का। जी, गौरी साहब जो है वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने जो किया, साथ साथ जो है हमारा बाकी जो ट्रस्टी है वो उन लोग बहुत है, उन लोगों का सपोर्ट मेरे को फुल मिलता है, तभी मैं ये काम करता हूँ। मैं उन लोग कोई भी काम में मेरे को बाधा नहीं डालते, हालांकि मैं हर एक चीज़ उनको पूछ के सभी करते हैं, लेकिन कोई चीज़ में मेरे को बाधा नहीं डालते। मैं जो, हाँ तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हैं, उनको बता के कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। गौरी साहब भी जैसे हैं, बाकी ट्रस्टी हमारा जनरल सेक्रेटरी साहब है, प्रेसिडेंट साहब है, वाइस प्रेसिडेंट साहब है, एंड और जितना ट्रस्टी है, बहुत मेरे को सब लोग खुशी आके जब मेरे को बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, तभी मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी मिलता है कि हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ बोल के।
आई थिंक ये एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, बिकॉज हर जगह पे कुछ ना कुछ चीज़ें वेस्ट होती है। कहीं जितना भी हम बोले इको फ्रेंडली, एट द एंड देयर इज़ समथिंग दैट इज़ बीइंग वेस्टेड। बट देन स्वर्ग वाटिका ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है, फर्स्ट टू सर्व द पीपल, विच इज़ आई थिंक इन टुडेज़ जनरेशन वेरी फ्यू पीपल थिंक अबाउट इट। एंड यहाँ पे इतने सारे ट्रस्टीज़ हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, लेट इट बी फ्रॉम गार्डनिंग टिल कि वहाँ पे जो बायोगैस होते हैं उसको कैसे डिकम्पोज वगैरह करे, कोई भी चीज़ें अगर आती है, पूजा का जो भी सामान है, वो सारे चीज़ें कैसे उनको वेस्ट नहीं होने दिया जाए, उस हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखभाल किया जाता है। रूल्स एंड रेगुलेशन, ऐसा कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, बट देन still everyone knows what to follow, what should be the best thing that we should do it from our side. Like सब यहाँ पे एक फैमिली की तरह रहते हैं, कहीं पे किसी भी स्टाफ को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सब एक साथ आ जाते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी effective in any organization to think their organization as a family and as a part of their family. So this is the great initiative, I think, and for every youth I think they should be very motivated. I think this is a very ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर एन इंस्पिरेशन कि हमें भी आगे जाके ऐसा कुछ करना चाहिए, या फिर थोड़ा सा एटलीस्ट सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए, कि हम भी नाम कमाने के लिए नहीं, पैसे कमाने, वॉट एवर यू हैव, इट्स नॉट दैट अगर हम बिजनेसमैन बन गए तो ही हमें करना है। वॉट एवर आई हैव, आई एटलीस्ट कॉन्ट्रीब्यूट सम पार्ट ऑफ माई इनकम टू दिस सोसाइटी एंड यूटिलाइज इट। अगर उसमें थोड़ा, अगर एक इंसान का भी अच्छा होता है, सो दैट वुड बी ग्रेट फॉर एनी वन। सो ट्री सेविंग, आई थिंक इट इज़ अ मेजर कंसर्न। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा, वी शुड कंसिडर टेक द थ्रेट ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। सो ट्रीज इज़ दैट वन सोर्स जहाँ से हमको ऑक्सीजन मिलता है, एंड इट इज़ द वन सोर्स दैट बाइंड्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ the environment. So I guess Swarg Vatika has taken a very great initiative of saving the trees. Instead of using the wood of the trees for burning the dead bodies, I think they are using the go-cast, which is made out of cow dung. So, as I mentioned, no waste is a waste. Everything can be utilized. So the waste that's generated from cows, that is being used as a source of, and I guess the go-cast doesn't create that much pollution, or I guess there is no pollution. It is a very great initiative. And it's a very like where the technology advancement is happening. I guess in this way also our generation, our future is working towards success. ये चीज़ हमको हर जगह जगह पे बोलना चाहिए, हर जगह पे स्प्रेड करना चाहिए, अवेयरनेस करनी चाहिए कि हमको सोसाइटी के लिए कुछ करना है। एंड स्वर्ग वाटिका इज़ अ प्लेस वेयर एवरीथिंग हैज़ बीन डन, बी इट फ्रॉम गरीबों की हेल्प करना, ट्री एनवायरनमेंट फैक्टर देखना, हर चीज़, हर फैक्टर उन लोग देख रहे हैं। सो इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द पीपल ऑफ एंड द ट्रस्टीज ऑफ स्वर्ग वाटिका. So I encourage people to at least have not 100% of what Swarg Vatika is doing, but at least minimum of 50% of what they are doing. Because एक एक बूंद से जैसे सागर बनता है, if one crematorium, one such Swarg Vatikas का थोड़ा सा भी इनिशिएटिव अगर कहीं पे हो तो दुनिया चेंज हो जाएगी. So I am making a documentary on Swarg Vatika. So he initiated that let's make a documentary and let's spread the awareness. So हमारा बेसिक है अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए कि कैसा हर चीज़ हम इको फ्रेंडली बना सकते हैं. बिकॉज आजकल के लाइफ में जहाँ पे दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, वो चीज़ हम लोगों को बताना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्री के थ्रू. तो हम वैसे डॉक्यूमेंट्री ले रहे हैं जहाँ पे काम कैसे चल रहा है, बॉडीज़ कैसे जल रही है, स्टाफ कैसे काम कर रहे हैं, वो सब हम एक साथ लेके हम ऐसा एक शॉर्ट, ज़्यादा हम टाइम के लिए नहीं बनाना चाहते, बिकॉज हमारे ह्यूमन माइंड हो गया बहुत शॉर्ट, कॉन्सेंट्रेशन स्पैन हमारा बहुत हो गया. तो बहुत कम टाइम में हम एकदम ऑन पॉइंट, टू द पॉइंट हम चीज़ें दिखाना चाहते हैं कि कैसे काम हो सकता है. नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. हर चीज़ को हम एज अ रिन्यूएबल रिसोर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज हम यूज़ कर सकते हैं. सो उस चीज़ को हम दिखाना चाहते हैं. हम
इवन जो हमारे जो कस्टमर्स आते हैं यहाँ पे, उनसे भी हम पूछना चाहते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। हम हमारा काम कर रहे हैं बट उनको भी पूछना चाहिए, उनके भी टेस्टिमोनियल्स हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सजेशंस ले सकें कि हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं। आपको कैसा लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम फेस हो रहा है कि नहीं, बिकॉज इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आफ्टर, बिकॉज हम कुछ आपको देंगे, आपको अगर वो पसंद नहीं आया, वी नीड टू चेंज दैट। आपको जो पसंद आएगा, आपके लिए जो हेल्पफुल रहेगा, वो हमको बताए तो हम लोग उसको और अच्छा उसको बना सकते हैं। सो कमिंग फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड, आई हैव लर्न टू टेक अपॉर्चुनिटीज़। कहीं पे भी कुछ भी दिखे उसको सीखो, उसको लोगों को बोलो। कहीं हर चीज़ यूनिक होती है, हर चीज़ में उनकी अपनी हैसियत होती है, तो वो चीज़ को आप लो, उसको अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से मोल्ड करके आप दुनिया के सामने पेश करो, ताकि वो दुनिया उसको भी अप्रिशिएट करे, वो छोटी छोटी चीज़ों को भी अप्रिशिएट करे। एंड जैसी जो चीज़ें हम दुनिया को बताते हैं, वो उनको अप्रिशिएट करने लगते हैं, वो उनको फॉलो करने लगते हैं। तो एक हम इंस्पिरेशन स्टोरी बनाना चाहते हैं कि ऐसे स्वर्ग वाटिका सिर्फ हैदराबाद में एक जोन में नहीं, हैदराबाद, तेलंगाना, पूरे वर्ल्ड में ऐसा होना चाहिए, ताकि जितने भी हमारे कंसर्न्स है रिलेटेड टू फाइनेंशियल कंसर्न, इकोनॉमिक कंसर्न्स, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, वो कम हो जाए, कम से कम हो जाए। हमारे साइड से हम जितना ट्राई करें कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम एक इंसान क्या कर लेंगे। हम एक इंसान अगर एक चीज़ कर सकते हैं, दूसरा इंसान अगर उसको उस स्टेप में, एंड इफ़ दे फॉलो द लेगेसी, आई थिंक the world can really change, and they will step into a new world, and they will be the initiator of a new world for a better place. You actually come, this place is located in RTC colony, Tirmalgiri. You can also Google search in Swarg Vatika, so you can just come and हैदराबाद, तेलंगाना, इंडिया में अब आके एक बार देखिए कि हम जो बोल रहे हैं वो सिर्फ बातों में ही नहीं है। आप आके देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग कैसे काम कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको रोका जाएगा कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। इट्स ओपन फॉर एवरीवन, हर धर्म के लोग, हर रिलीजन के लोग कैन कम हियर एंड दे कैन एक्सपीरियंस व्हाट स्वर्ग वाटिका इज़, हाउ इट वर्क्स, एंड दे एटलीस्ट, आई एम रियली श्योर कि आप अगर यहाँ पे एक बार आएंगे तो एटलीस्ट इनके यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जहाँ से लोग काम कर रहे हैं, जैसे लोग आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ से आप एटलीस्ट 10% भी अगर आप अपने साथ लेके जा सकते हैं, दैट वुड बी लाइक द ट्रेंड सेटर फॉर द यूथ, फॉर ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ वर्ल्ड। आई गेस हर शमशान, हर क्रेमेटोरियम ऐसा ही होना चाहिए। इनफैक्ट इससे भी अगर और बेटर वर्जन हो सकता है, सो उसकी तो दाद देनी पड़ेगी, बिकॉज हर चीज़ का एक महत्व होता है, हर चीज़ कुछ सोच समझ के बनाई जाती है। अगर यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े ट्रस्टीज़, बिजनेसमैन, अगर इन्फ्लुएंसर्स आके ये एक छोटी सी सोच इन्होंने लगाई थी कि कुछ सेवा करनी है, वो छोटी सी सोच में इन लोगों ने इतना बड़ा कुछ कर दिखाया है। तो आई थिंक ये थोड़ा थोड़ा करके इंडिया में, आई गेस, सारे क्रेमेटोरियम में ऐसा ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए।